Spot exchange rate is 72.50/72.80 rupees per dollar. Time period is 3 months. Rate of interest information is given to us for rupee currency. It is 25/26%. For United States dollar currency, it is 6/7%. 3 महीने का 3 months forward exchange rate information is given to us 73.5/73.7 rupees per dollar. You are required to answer following simple questions. This is Reliance Limited, an Indian company, has exported goods on 1st of January to a US company. It is going to receive heading the portion $1,000 after 3 months. How it can hedge its foreign exchange risk by adopting forward market hedge, and the second is money market hedge, cash market hedge. That is the question. So friends, basically we understand that say we are an Indian company and we are going to receive the consideration in foreign currency, that is dollar. इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस. हमको क्या मिलेगा? $1 का कम रुपीस मिलेगा. सो हमको क्या मिलेगा? 73.5 रुपीस मिलेगा फॉर $1. So we understand it is 1000 into 73.5. This is the amount of the rupees that we will get. Now I will heading money market hedge, slash cash market hedge. So let us have understanding that यहाँ पे कैसे होगा मनी मार्केट हेज या कैश मार्केट हेज में कैलकुलेशन. एकदम अच्छी तरह से सब लोग समझिएगा. We understand that say we have sold goods and we are going to receive the consideration after 3 months, and the goods have been sold on 1st of January. Any consideration हमको मिलने वाला है 31st of March. What is the amount of the consideration that we are going to receive, dear students? We are going to receive the consideration of $1,000. Basically we understand that हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए चैलेंज ये है that से 3 महीने के बाद ये डॉलर करेंसी को हमें क्या करना है? हमको रुपी करेंसी में कन्वर्ट करना है. So basically it is sell of dollar and purchase of rupees. यानी $1000 को हमें रुपीस करेंसी में कन्वर्ट करना है. उस दिन का रेट क्या होगा? उसके लिए अनसर्टेनिटी है. And that is what we understand is a foreign exchange risk. So मनी मार्केट हेज या कैश मार्केट हेज में क्या किया जाता है फ्रेंड्स? उसमें कुछ ऐसा किया जाता है कि जिसकी वजह से उस वक्त हमको $1000 को रुपी में कन्वर्ट नहीं करना पड़े. कुछ ऐसा किया जाता है. What do? We do something so that at the end of the 3 months we do not have to convert the dollar into rupees. So what we will do, friends, listen carefully. As 1st of January को we will enter into the transaction for, listen carefully, borrow a certain amount of the dollar. फिर हम लोग स्पॉट ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे. स्पॉट ट्रांजैक्शन इज सेल ऑफ दिस अमाउंट ऑफ डॉलर जो हमने बोरो किया है, एंड से वी विल परचेज रुपीस. We will enter into the spot transaction for conversion of the borrowed dollar into rupees. And of course, for that, we will use the spot exchange rate. प्रश्न में spot exchange rate क्या दे रखा है? ये रहा spot exchange rate. Okay. So now borrow dollar, sell dollar, purchase rupees. जितना भी rupees हमको आज मिलेगा ना friends, we understand is the amount that we receive today itself. Now हमने इतना डॉलर borrow किया है, listen carefully, so that say at the end of the 3 months we have to make payment of $1000. At the end of the 3 months, we have to pay $1000. So what happens at say उस दिन हमको डॉलर करेंसी को रुपी करेंसी में कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. That is what we understand. Now जो रुपीस हमको मिला वो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है, वो हमारा होम करेंसी है. पर ये जो रुपी करेंसी है ना, वो हमको आज मिल रहा है. And say this amount cannot be compared with 73,500. क्यों सर? Because of the time difference. We understand that say मनी मार्केट हेज में जो रुपीस मुझे मिलता है वो आज मिलता है, और फॉरवर्ड मार्केट हेज में जो 73,500 है वो मुझे 3 महीने के बाद मिलेगा. So what happens that say in order to make these two values comparable, हम लोग ऐसा करेंगे that say ये जो amount है ना, amount of the rupees, उसको हम लोग 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे. Whatever the amount of the rupees that say we have received today, so that will be invested for 3 months. ऐसा किया जाएगा. और 3 महीने के बाद जो हमको अमाउंट मिलेगा, so that is the maturity amount of the deposit. ऐसा हम लोग समझते हैं. This amount will be compared with 73,500. दोनों अल्टरनेटिव में से जो बेटर अल्टरनेटिव है से उसको हमें सिलेक्ट करने का है. We have to make a comparison between 73,500 and this maturity amount of the deposit. Between both of them, जो हायर अमाउंट है उसको हमको सिलेक्ट करने का है. ये जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन की कर रहा हूँ. एवरीबॉडी से फर्स्ट पे अटेंशन. 1st of January को हम लोग क्या करेंगे? We will borrow dollar in spot transaction. We will sell dollar and we will purchase rupees. Today itself, invest rupees for 3 months. Borrow dollar, sell dollar, purchase rupees, invest rupees for 3 months. On 31st of March,
हमने इतना डॉलर बोरो किया था ना कि हमको $1000 का पेमेंट करने का था। हमको $1000 हमारे कस्टमर से मिल जाएगा। तो इस दिन का रेट 31 मार्च का रेट ₹10 पर डॉलर है, तो भी अपने को क्या, वी आर नॉट दैट इज कंसर्न विद द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन 31 मार्च। क्यों? क्योंकि हमको उस दिन पे भी करना है 1000, हमको रिसीव भी होगा 1000। सो वी अंडरस्टैंड एट द हमको उस दिन कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है 3 महीने के लिए, उसका हमको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ये जो हमको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 3 महीने के बाद, वो मैच्योरिटी अमाउंट को हमें 73,500 से कंपेयर करना है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव व्हिच इज गोइंग टू गिव अस द हायर वैल्यू। ऐसा हम समझते हैं। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द मनी मार्केट हेज। ठीक है ना? तो चलो पहले उसका थोड़ा पहले नोट लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट द हेडिंग मनी मार्केट हेज। राइट ऑन दिस हेडिंग। उसको दूसरा भी नाम दिया जाता है कैश मार्केट हेज। स्टेप नंबर 1 उस पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डॉलर टू बी borrowed today so that after 3 months repayment of loan will be $1,000. So borrow and repayment. बोरोइंग में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे $1, तो रीपेमेंट कितना होगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और 7, सो 7 इज रेलेवेंट फॉर अस क्योंकि हम लोग बोरो कर रहे हैं। तो रीपेमेंट कितना होगा 1 + 1 * 0.07 * 3 / 12, 1 + 1 * 0.07 * 0.25, so 0.0175, 1.0175। 3 महीने के बाद हमारा रीपेमेंट कितना होना चाहिए $1,000 का। तो लोग आज इतना अमाउंट बोरो करेंगे, सो 1000 * 1 * 1 का कोई सेंस नहीं है, डिवाइडेड बाय 1.0175, so it is 1000 divided by 1.0175, so it comes to 982.80. So this is the amount of the dollar to be borrowed today. Step number 2, उसमें हम लोग लिखेंगे that enter in spot transaction for conversion of dollar into rupees. So we understand it's the spot exchange rate क्या है 72.50 / 72.80 रुपीस पर डॉलर। ये स्पॉट एक्सचेंज रेट है। हमको स्पॉट ट्रांजैक्शन में डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीस में, और हमको इतना रुपीस मिलेगा। सो रुपीस एंड डॉलर 72.50 रुपीस फॉर $1। हमने इतना अमाउंट बोरो किया है 982.80, तो उसके सामने हमको इतना रुपया मिलेगा। सो द आंसर इज 982.80 into 72.5 divided by 1, that comes to 71253. So this is the amount of the rupees so that we will receive today. Step number 3, in that we understand calculation of maturity amount of deposit in bracket writing rupees currency. यानी हमने क्या किया, बोरो डॉलर, सेल डॉलर, परचेज रुपीस, और जितना भी रुपीस हमारे पास आएगा ना सो उसको हमको इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना? इतना डॉलर हमने बोरो किया, उसको रुपीस में कन्वर्ट किया, और ये जो अमाउंट ऑफ रुपीस है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो 71253 प्लस 71253 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% इनटू 3 divided by 12, सो 71253 इनटू देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% इनटू 3 divided by 12, यानी 6.25 अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का 1.0625। So we understand that it is calculated like this 0.25 into 3 divided by 12, so plus 1, so 1.0625 into 71253, so 75,706.31, 75,706.31.
ये जो आंसर है उसको हमें अल्टरनेटिव नंबर के साथ कंपेयर करना है, एंड अल्टरनेटिव नंबर 1 क्या है, से फॉरवर्ड मार्केट एज। एंड फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमको इन्वेस्ट करने का। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, वी बॉरो डॉलर 982.8। सो हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, लेट्स से फर्स्ट ऑफ जनवरी को हमने क्या किया, वी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन ऑफ बॉरो डॉलर, ठीक है, 982.8। उसके बाद स्वॉट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ डॉलर एंड परचेज ऑफ रुपीस, 982.80 डॉलर हमने कन्वर्ट किया रुपीस में, एंड वी गेट 71253। 3 महीने के बाद हम 31 ऑफ मार्च जो भी हमने डॉलर बॉरो किया था ना उसका हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा, कितना, $1000 का। तब हमको $1000 वापस मिल जाएगा सामने, एंड से वो दोनों एक दूसरे के सामने स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जो हमने इन्वेस्ट किया ना फ्रेंड्स, उसका 3 महीने के बाद हमको मैच्योरिटी मिलेगा। 3 महीने के बाद मैच्योरिटी कितना मिला, 75706.31। दिस इज सपोज्ड टू बी कंपेयर्ड विद 73500। अब दोनों में से जो बेटर ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट, फॉरवर्ड मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज। यहाँ पे अमाउंट में लिख रहा हूँ रुपीस टर्म में 73,500 and 75706.31. You select the higher amount, that is money market hedge. So step number 1, borrow dollar. Step number 2, conversion of that in rupees. Step number 3, उसका investment के ऊपर से maturity. And we got the amount of 75706.31. So with paragraph write down. Reliance company is advised to enter into money market hedge.